I know one thing, that I know nothing. السلام علیکم. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان وہ سرگرمی جسے مرکزی حیثیت حاصل رہنی چاہیے وہ ہے علم. یا استاد رہو یا طالب علم. اور اللہ تعالیٰ بھی تو یہی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. And the truth is that every step taken in the path of knowledge is nothing but prayers. میں ہوں خرم الائی اور نقطہ میں آج ہم گفتگو کریں گے تصور علم اور دانائی پہ. اور آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر محمد نجیب خان. ویلکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب علم اور دانائی میں کیا فرق ہے اور ان کی کنسیپچل انڈرسٹینڈنگز میں کیا فرق ہے اور ان کی ایٹمولوجیکل ڈفرینسز کیا کیا ہیں؟ دیکھو خرم، ایک اطلاع یا کوئی واقفیت کسی چیز کے ساتھ جو سادہ سی ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیپ نہ ہو، اس کو ہم اطلاع کہتے ہیں یا انگریزی میں انفارمیشن کہتے ہیں. اگر انفارمیشن اطلاع ایک طرف کی ہو تو وہ انفارمیشن ہے، اگر وہ دو طرف سے ہو رہی ہو تو اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. لیکن اگر یہ اطلاع بہت ڈیپ ہو، اپنی ڈیپتھ میں، اپنی وسعت میں اور اپنی سمجھ میں، انڈرسٹینڈنگ میں، گہرائی میں، تو یہ علم ہے. ٹھیک. اور علم کی بنیاد جو ہے وہ ادراک اور شعور پہ ہوتی ہے اور وہ بذات خود حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. البتہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے علم کے لیے کہ علم کو جب آپ سوال کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ریزننگ، یعنی علم کے اندر سوال کر کے پوچھنا کہ میرا جو عقیدہ ہے یا میرا جو بلیف ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کے جواب ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے. اور جتنے زیادہ آپ کے دماغ میں سوالات ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دماغ ان کے جواب دے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. چونکہ آپ کا علم پھر گرو کرے گا، جیسے درخت گرو کرتے ہیں یا چیزیں، سبزیاں، پھل گرو کرتے ہیں، آپ کا علم بھی اسی طرح گرو کرے گا. البتہ ایک جو عام طور پہ آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ جرنل ہوتی ہے، لیکن ایک آپ کا وہ علم جس کو آپ اپنی عقل سے، اپنی دلیل سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی دانائی سے ثابت کر سکیں، وہ سالڈ ہوتا ہے اور سٹرونگ بن جاتا ہے. اور ایک سٹیج پہ آ کے وہ علم آپ کے عقیدے میں بدل جاتا ہے، آپ کے بلیف میں چلا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلیف ہے یہ بیسیکلی آپ کے علم کا سیڈ ہے، بیج ہے. وہ علم جو عقیدے اور عام انفارمیشن کے درمیان کامن ہوگا اس کو آپ جسٹیفائی بلیف کہتے ہیں. البتہ علم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، اس کو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو کچھ علم جرنل ہوتا ہے، پرنسپلز اس پہ کیری کرتے ہیں. کچھ علم ہے جس میں تھیوریز ہوتے ہیں، موڈز ہیں، سٹرکچر ہیں، ڈسکرپٹیو نالج ہوتا ہے، آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں. کچھ علم آپ کے پروسیجرل پہ بیس کرتا ہے اور کچھ علم آپ کا کنسیپچول ہوتا ہے، یعنی اس کے کانسیپٹس ہیں. دیکھیں نا، کچھ لوگ میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسٹیٹکس میں اور لٹریچر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سکلز میں، اپنے جو کرتب ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پی آر میں بہت اچھے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو اپنے تھاٹس میں، اپنی جو میٹا کوگنیٹو فورسز ہے یا جو ہم کوگنیٹو پروسیس آپ کے برین میں ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو لیکن اوورآل یہ ہے کہ بہت ساؤنڈ نالج کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا نالج انالیٹیکل بھی ہو، انالیسس دے سکے آپ کو. نمبر 2، وہ پریکٹیکیبل ہو، وہ سوسائٹی کے ساتھ اپلیکیبل ہو، یعنی سوسائٹی آپ اپلائی کرنا چاہیں تو آپ کے آسانی سے وہ اپنے دور کے تقاضوں کو ریلیٹ کرتا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تھاٹفل ہو. مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلط کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. تو آپ کا جو تھاٹ ہے وہ بیسیکلی پریکرسر ہوتا ہے آپ کے ایکشن کا. وہ علم جو عمل کے بغیر ہو اور وہ عمل جو علم کے بغیر ہو، ان دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا وہ کم اہمیت رکھتے ہیں. لہٰذا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا علم ٹھوس حقیقت میں مبنی ہو. جہاں تک تعلق ہے وزڈم کا، وزڈم بنیادی طور پہ وائز کو کہتے ہیں، یعنی ایسا انسان جو اپنے علم کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو اور اپنی لرننگز اور انڈرسٹینڈنگز کو دنیا کے مسائل کے اوپر رکھ کے ان کا حل تلاش کر سکے اور لوگوں کو ایک اچھا سلوشن دے سکے. اور البتہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے عقل کا، وہ تھوڑا سا مشرق کی جو کانسیپٹ ہے اس سے مختلف ہے. مثلاً ویسٹ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ زیادہ چیزوں کو انالیسس کر کے دیکھتے ہیں، وہ ججمنٹ میں اور پروڈنس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. جو سیجز ہیں، سیجز جو ہمارے ہسٹری میں ہیں، جو آپ کا مشرقی نالج ہے وہ آپ کی کلچرل فیکٹرز کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. لانگ ٹرم جو آپ کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جنریشن در جنریشن، ان کو زیادہ فوقیت دیتا ہے جو آپ کے ایسٹرن جو نالجز ہیں. بقول ہیراکلائٹس، بڑا بندہ وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارات اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑ جائے، بلکہ بڑا بندہ وہ ہے جس کے خیالات اور نظریات لوگ اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. عقل اور علم کا کیا فرق ہے؟
नॉलेज जो है वो बेसिकली सुपरफिशियल भी हो सकता है, लेकिन अक्ल आपको डेप्थ में लेके जाती है। ठीक है। नॉलेज जो है वो टाइम ट्यून्ड हो सकता है, अक्ल टाइम लेस होती है, टाइम की बाउंड्री से परे चले जाती है। ठीक है। जो विजडम है वो बुनियादी तौर पे आपको रैशनलाइजेशन की तरफ लेके जाती है, रीजनिंग सिखाती है, लॉजिक सिखाती है, और आपसे वो डिसीजन कराती है जो ज़्यादा मैनकाइंड पे मरकूज़ होते हैं, और उसमें आपके कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं, और सेजेस के जो डिसीजंस हैं वो आज भी आप देखें कि वो आज भी एप्लीकेबल हैं हमारे इंसानों की ज़िंदगी पर। डॉक्टर साहब, कुरान दो मुख्तलिफ तरह के लोगों को मुखातिब करता है, एक उलिल अलबाब अकल वाले, उलमा इल्म वाले। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और कुरान इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से क्यों मुखातिब करता है? इल्म वाले तो हो गए जिनके पास इल्म है, और लिब बेसिकली जो लफ्ज़ होता है, जैसे साहब मुहीत कहते हैं कि लिब का मतलब ये होता है दिल, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अरबी ज़बान में जो लबन है उसका मतलब होता है खालिस अकल, प्योर विजडम। ठीक। कुरान सूरह बकरा में है ना, यूतल हिकमता मन यशा व मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करो इल्ला उलल अलबाब। तो उलल अलबाब वो लोग हैं जो विजडम वाले होते हैं। तो विजडम का यानी मलबूब उस बंदे को कहते हैं जो अकल वाला हो, अपनी अकल का इस्तेमाल करे। और लब्बल लॉस बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है जिसका मतलब टू गेट मगज़ फ्राम ब्रेकिंग। बादाम आप तोड़ते हैं तो उसमें से जो मगज़ निकालते हैं उसको कहते हैं लब्बल लॉस अरबी में। और इसी तरह जो लब्बैक का लफ्ज़ भी इसी से निकला हुआ है। और लब्बुल अकल कहते हैं जो कि मतलब अकल वाले जो अकल का इस्तेमाल करें। अल-लब्बो जो है उसका प्लूरल अलबाब है। ठीक है। तो ये कुरान हकीम की जो आयत है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि ला आयातिल लिउलिल अलबाब, यानी जो उलल अलबाब हैं उनके लिए आसमान की तख्लीक में, ज़मीन की तख्लीक में, और जो शब व रोज़ हैं इनके आने में निशानियाँ मौजूद हैं। लेकिन किन लोगों के लिए? जो उलल अलबाब है, अकल वाले हैं। अकल वाले हैं, क्योंकि अकल वाले ही अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, थिंक करते हैं, पॉन्डर करते हैं। ठीक है। तो क्या दीन या मज़हब परारी राशनलिज्म की ही एक टाइप है जिसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं? वो कौन से असबाब और मुहरकात हैं जो इल्म को बिलीफ में लेके जाते हैं, और वो कौन से असबाब हैं जो बिलीफ को नॉलेज में लेके जाते हैं? Knowledge speaks, but wisdom listens. डॉक्टर साहब, अगर हम इल्म को देखें तो ये जहन में उठने वाले चंद नज़रियात ही हैं, मगर हमें बचपन से बताया जाता है कि इल्म ख़जाना है, इल्म रोशनी है। तो जहन में उठने वाले चंद ख्यालात ख़जाना या रोशनी कैसे बन जाते हैं? देखिए, जो अंधेरा और उजाला है ये दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, वही दो स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। अगर आप बाहर की दुनिया में भी देखें, रात के टाइम पे देखें, आपके पास कोई चिराग ना हो, कोई रोशनी ना हो तो अंधेरा होता है और आप इवन एक फुट नहीं चल सकते। यही बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड आपके दिमाग के अंदर भी होती है, लेकिन अंदर का अंधेरा जो है वो कम इल्मी की बुनियाद पे होता है। ठीक। उसके जो साए हैं वो कम इल्मी से आते हैं, इदराक और शऊर की कमी से आते हैं। और जब आपके अंदर इल्म की कमी ना हो और ग्रेजुअली आप इल्म हासिल करना जाने, देखो बेबी जो होता है शुरू से ही जब मैं कहता है और वो अपने पेरेंट्स को पहचानता है, बहन भाइयों को पहचानता है, उसके इल्म में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली उसका दिमाग चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और इल्म का एक छोटा सा ज़ख़ीरा उसके दिमाग में पैदा होना शुरू हो जाता है और डे बाई डे वो बढ़ता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बिल्टअप होता है, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। यानी आपके दिमाग के अंदर एक रोशनी आती है और आपको चीज़ों का इदराक होना शुरू हो जाता है। जब इदराक होता है आपका दिमाग और चंद एक सवालात लेके आता है,
ग्रेजुअली एक ऐसी सतह पे आ जाता है कि जिस सतह पे जाके आपका नॉलेज बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है और आपको इस तरह चीज़ें नीचे नज़र आती हैं जिस तरह आप एक ऊपर टावर पे चढ़े हुए हों और नीचे लोगों के मकानों की छतें आपको नज़र आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से असबाब और मुहरकात हैं जो इल्म को बिलीफ में लेके जाते हैं और वो कौन से असबाब हैं जो बिलीफ को नॉलेज में लेके जाते हैं। उनका यानी ये अपना अपना इदराक है, ये डिपेंड करते हैं आपका लेवल ऑफ लिविंग क्या है, आपका थॉट क्या है, आप किस केमिस्ट्री के बंदे हैं। वरना हर बंदा जिस स्टेज पे उसका दिमाग काम कर रहा होता है वो दुनिया उसके लिए खुल जाती है। हस्ती के मत फरेब में आ जायो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। आपका जो प्रपोजिशन है कि जस्टिफाइड बिलीफ जो है वो आपका आता है जब आपका इल्म एक साइड पे हो और आपका जो अकीदा एक साइड पे हो और उनके दरमियान जो कॉमन चीज़ जो मुश्तरक होगी वो आपका जस्टिफाइड नॉलेज होगा। कहते हैं ना कि जैसे हज़ूर पाक की हदीस भी है कि सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रेडर टू ग्रेव। डॉक्टर साहब, इमैनुअल कांट अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में रैशनलिज्म को दो बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, एक परारी रैशनलिज्म और एक पोस्ट परारी रैशनलिज्म। परारी रैशनलिज्म ऐसे अकायद के ऊपर मौजूद होता है जिसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या दीन या मज़हब परारी रैशनलिज्म की ही एक टाइप है जिसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं? देखें, दो बातें। इंसान के अंदर जो अलूम पाया जाता है, जो इंसान का ज़ाती इल्म होता है, उसके तीन बड़े सोर्सेज हैं। एक वो इल्म है जो आपका सेंसुअल नॉलेज है, वो आपको अपने असाब के ज़रिए, अपनी सेंसेस के ज़रिए आपको मिलेगा। एम्पिरिकल नॉलेज जो है सारा, आपका मुशाहिदा, आपका तजर्बा, आपकी कुव्वत समात, बसारत, आपकी जायके की कुव्वत, आपकी टच की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, ये 5 टूल्स हैं हवासे खमसा जिन्हें कहते हैं। और छठी फिर आपकी वो सेंस होती है जो उन सारों को मिला के बनती है, जिसको हम छठी सेंस भी कहते हैं, आपका अक्ल का इस्तेमाल। ये आपके वो टूल्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन हैं, गेटिंग नॉलेज हैं, और आप इनसे एक तस्वर बनाते हैं, यानी एक तस्वीर से आपका तस्वर बनता है। एक तो आपका ये सोर्स है। दूसरा आपका सोर्स है वो नॉलेज जो आपका इन्नेट होता है, यानी आपको अल्लाह ताला ने दे दिया हुआ है इसमें। व नफ्सिम वमा सव्वाहा फलहमहा फजूरहा व तक़वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि हमने आपके नफ्स को एक बैलेंस में ला दिया है। और ये जो आपका अंदर अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक चंद एक इस्तात रख दी है, कुव्वत रख दी है, एक वो नॉलेज है। और तीसरा आपका सोर्स नॉलेज वो है जो रेविलेशन से आता है, डिवाइन नॉलेज होता है। ये जो तीन आपके सोर्सेज हैं नॉलेज के, ये आपके सॉलिड सोर्स बनते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपका अकीदा या आपका नॉलेज बेस करता है आपके ऐसे अलूम पे जो हवासे खमसा पे डिपेंड करता है, तो कई ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसमें आपके हवासे खमसा को चैलेंज हो जाता है और वो सारे का सारा नॉलेज इंसान की फलाह व बहबूद पे कोई असर नहीं डालता और ना उनके हल लगाता है। देखें ना, आपकी कलेक्टिव विजडम जो है इंसानों की, अभी आपकी पिछली सदी में 2 जंगें पूरी दुनिया की हो चुकी हैं। करोड़ों इंसान जो है उन्होंने करोड़ों इंसानों को मार दिए। तो सवाल ये पैदा होता है क्या उनके पास कलेक्टिव विजडम नहीं थी? कलेक्टिव विजडम थी, बट वो इंसानों का फ़ायदा क्यों नहीं कर सके? इंसान अभी भी एक दूसरे को क्यों मारता है? उसकी रीज़न ये है कि इंसानी अकल जो है, कलेक्टिव विजडम भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को गाइड कर सके। कुछ अलूम ऐसे हैं जिसमें आपको तस्दीक की पोस्ट प्रायोरिटी है, यानी जिसमें आपको एविडेंस की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन बाज़ आपको तस्दीक कल्ब के लिए आपको यानी डिवाइन नॉलेज की भी ज़रूरत होती है ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली अपने कल्बो नज़र में समा सकें। यानी मेरा तजर्बा और मुशाहदत मुझे बताता है ये चीज़ होती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा अंदर से कन्विंस नहीं होता। तो यह है ना कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसे मुर्दों से ज़िंदा होती हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि भी आपको यकीन नहीं है? उन्होंने कहा जी मुझे यकीन है, लेकिन मैं तस्बीतुल क़ल्ब के लिए ये मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाया जाए। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका एविडेंस होना है साथ आपका, वो आपके असाब के अलावा, आपके हवासे खमसा के अलावा आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी देता है और आपके कल्बो नज़र के जितने भी खाने हैं उनकी तकमील भी करता है। डॉक्टर साहब, सुकरात ने कहा था बेशक एक पढ़ा लिखा शख्स बेहतर ज़िंदगी गुजारता है, कुरान भी फुरकान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, फ़र्क करने वाला, मगर आज का इल्म हमें इस तरह लगता है कि गुड और ईवल का फ़र्क नहीं कर पा रहा। जंगों की मिसाल आपके सामने है, कितना प्लान डिसीजन होता है जिसमें हम जाते हैं एंड देन वी डिस्ट्रॉय द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या इल्म एथिक्स के मामले में जाकर अंधा हो जाता है?
देखो इसमें खुरम अगर हम अपना एनालिसिस करके देखें ना, आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि काम गलत हो रहा है, लेकिन वह जब दूसरों के बारे में सुनते हैं कि काम हो रहा है, दे नो कि गलत हो रहा है, लेकिन वो उसकी मुखालफत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या असबाब हैं? बेशुमार असबाब होंगे, लेकिन एक सबब ये होता है कि वो खुद ही ये काम कर रहे होते हैं। उनका अंदर से एक जस्टिफिकेशन उनको मिल रही होती है कि यार डजंट मैटर, ये कोई ऐसे ही होता है। वो एक ही जुमला कहेंगे, ये सारे करते हैं, ऐसे ही होता है। कितनी करप्शन सोसाइटी में होती है, दे जस्टिफाई बाय वर्चू ऑफ दिस। इसी तरह बाज़ होता है कि आप ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी आप अपने रैशनलाइजेशन को, लॉजिक को बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से देखते हैं। आपकी मॉरल फिलॉसफी जो है वो इस पे बात करती है, आपके एथिक्स इस पे बात करते हैं। आप पता है ग्रीक्स ने इसमें बड़ा काम किया बिल्कुल, कि भाई आप सब कुछ होने के बावजूद, यानी इंसान का इल्म अपनी सतह पे खड़ा है, बहुत आगे चला गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी आप फ़लस्तीन में देखें, कश्मीर इसका जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप एक देखते हैं कि जो कहते हैं वांट सेल्फ, यानी आपका जो सेल्फ है उसके अंदर एक अट्रैक्शन पाई जाती है, मैं और मेरी। ये जो मेरी का कॉन्सेप्ट है वो आपके फ़र्द से भी शुरू होता है, फिर आपकी फैमिली तक, और जब आपका यानी आपका थॉट जो है और आपका जो बिलीफ है वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ओवरवेलम कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर आप सोर्सेस ऑफ नॉलेज पे जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन इसमें बहुत आपको हेल्प करती है, जिसको आप छठी सेंस कहते हैं ना, जिसको कश्यप भी कहते हैं, या आपकी अकल, आपकी रीजनिंग फैकल्टीज़ आपको बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। तो लिहाजा एक अच्छा डिसीजन करने के लिए आपका नॉलेज जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, पावरफुल होना बड़ा ज़रूरी है, उसका लॉजिकल होना बड़ा ज़रूरी है, एनालिटिकल होना बड़ा ज़रूरी है, और उस नॉलेज की बुनियाद पे आपका रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप यूनिवर्सल और जो कुरान हकीम के भी अफाकी प्रिंसिपल्स हैं उनकी रोशनी में आप जस्टिस कायम कर सकें और अपने राइट डिसीजन कर सकें। वंडर इज़ द बर्थ ऑफ साइंस, हैरत के बाद साइंस जन्म लेती है। तो तफक्कुर, तदब्बुर कितना ज़रूरी है? नफ्स पे जो कुरान हकीम जोर देता है उसमें तदब्बर की बात करता है, फ़िक्र की बात करता है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। It's not what you look at that matters, it's what you see. डॉक्टर साहब, सिकंदर आज़म डायोजीन द बैरल फिलोसफर के सामने आता है और उससे आकर पूछता है कि मैंने तुम्हारे इल्म के बारे में इतना कुछ सुन रखा है, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो डायोजीन सिकंदर आज़म को जवाब देता है कि कुछ भी मत करो, मेरे रास्ते की रोशनी के आगे से हट जाओ जो मुझे गरमाइश दे रही है। ये कौन लोग हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए थे, ना कोई कॉलेजेस थे, ना फॉर्मल एजुकेशन, मगर ये दाना कहलाते थे? तो हु आर द सेजेस? ये वो लोग होते हैं जिनकी जो रीजनिंग और लॉजिकल सोचने की जो कुव्वत होती है, जो अकली और दलाइल की कुव्वत होती है, वो बहुत भारी होती है आम नज़रियात पे, आम ख्यालात पे, कंपैरेटिवली स्पीकिंग दूसरे लोगों के मुकाबले में। और वो एक चीज़ का मुकम्मल एनालिसिस करते हैं, उसको एक थॉट देते हैं, उन पे गौर व खौज करते हैं, कल्ब व नज़र के पैमाने से उसे नापते हैं और देखते हैं कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स पे कहाँ आती है, गुड और बैड के प्रिंसिपल पे कहाँ आती है, और हमेशा वो जो स्टैंड लेते हैं उसको अपने इल्म के मुताबिक लेते हैं। इल्म उनका बहुत साउंड होता है। देखो इल्म के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। तो इल्म जब आपका एक दर्जे पे पहुंच जाता है तो वो एक यकीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। डायोजेन्स की आपने बात की है, आप प्लेटो को देखें, एरिस्टोटल को देखें, सोक्रेटिस को देखें, आप मौलाना रूम को देखें, इब्न अरबी को देखें, ताओ को देखें, ये बड़े बड़े जो नाम हैं
आफ्टर ऑल उस दौर में तो इस तरह की एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की नहीं थी, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज था। लेकिन फ़र्क यही है कि जो बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं वो आपको मॉरल प्रिंसिपल देती हैं, अकली दलाइल देती हैं, आपके इल्म में इस तरह की साउंडनेस पैदा करती हैं कि आप हमेशा जो डिसीजंस करते हैं वो बजाय ज़ाती होने के, एक फैमिली के पे होने के, वो मैनकाइंड पे बेस करते हैं, वो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि वो लोग जो हैं हमेशा आने वाली नस्लें उनके ख़यालात को, उनके नज़रियात को अपनी ज़िंदगी में, खा वो ज़िंदगी मुआशी हो, खा वो सियासी हो, खा वो फैमिली की हो, खा वो इनफरादी हो, वो उन पे अप्लाई करते हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये लोग जो हैं जो अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक, अखलाकी असूलों के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के असूलों के मुताबिक वो फैसले करते हैं जिनमें उनकी सेल्फिशनेस नहीं होती और उनका मकसद मैनकाइंड की फलाह बहबूद होता है, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और यही सीरीज़ है। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का तसव्वुर इल्म पर क्या कहना है या कितना इनकरेज करते हैं इल्म हासिल करने को, और सबसे बढ़कर के इस्लाम का तसव्वुर इल्म की तरफ क्या कहना है कि किस लगन के साथ हमें इल्म हासिल करना चाहिए? सारे मज़ाहिब और कल्चर जो हैं वो इल्म को आलमोस्ट फेवर करते हैं, लेकिन जो इब्राहिमी मज़ाहिब हैं, जुदाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, उनका इल्म पे बहुत ज़ोर है। मसलन जुदाइज़म में तो है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर बिलीफ कि इल्म हासिल करें, उनके अकीदे का हिस्सा है जुदाइज़म में। और क्रिश्चियनिटी में भी आपको पता है कि जो नॉलेज है उसकी जो 7 गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट्स के, वो बड़े फेमस हैं। उसमें मसलन विजडम है आपकी, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ काउंसलिंग है, नॉलेज है, ठीक है ना, ये वो वर्चूज़ हैं। फोर्टिट्यूड है, या आपका तरस खाना है, या आपका फियर ऑफ दी लॉर्ड जो है, सबमिशन में जाना, उस तरह का फियर नहीं जैसा ज़िंदगी में होता है। ये आपके 7 गिफ्ट्स हैं जो कि क्रिश्चियनिटी के हैं और उसमें इल्म को बहुत अहमियत हासिल है। अलबत्ता एक ग्नोस्टिसिज्म जो एक नज़रिया है वो इल्म को इतना सपोर्ट नहीं करता और वो उनके अपने इंडिविजुअल तरीके होते हैं। सेल्फ इज़ देयर सेंटर ऑफ दी फोकस, और वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इस्लाम में देखें जो अल्लाह ताला की 99 नेम्स हैं, अल्लाह ताला का अपना नाम अलीम है, ठीक है, और देखें कितना कितना पावरफुल वर्ड है। आलीम जो है उलमा इसकी जमा है, और इसकी बुनियाद पे आलम भी होता है, मफूल है जो कि आलमून उसकी जमा है, यानी एक कायनात जिससे मुराद ली जाती है। तो लिहाजा जो इल्म का मकाम है कुरान हकीम की नज़र में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वो बहुत बुलंद है कि जो बंदा इल्म हासिल करने निकलता है वो अल्लाह ताला के रास्ते पे होता है और उसको कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी खौफ का इल्म के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि वंडर इज़ द बर्थ ऑफ साइंस, हैरत के बाद साइंस जन्म लेती है। तो तफक्कुर, तदब्बुर कितना ज़रूरी है और कुरान हमें कितना ज़ोर देता है कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कायनात के ऊपर तफक्कुर या तदब्बुर कितना करना चाहिए? देखें, कुरान हकीम का जितना तदब्बर पे, फ़हम पे, फ़िक्र पे, तज़क्कर पे ज़ोर है, शायद ही इतना किसी और दो चीज़ पे हो। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जो तब्दीली आती है, जैसे मैं बता रहा था कि इंसान का नफ्स पे कुरान हकीम का बहुत ज़ोर है, नेचर पे बहुत ज़ोर है, तारीख़ पे बहुत ज़ोर है। तो नफ्स पे जो कुरान हकीम ज़ोर देता है उसमें तदब्बर की बात करता है, फ़िक्र की बात करता है। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि आप क्यों कुरान हकीम पे गौर नहीं करते, क्या आपके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाह सुम्मुल बुकमुन अल्लज़ीना ला याक़िलून, कि वो वाइल्डेस्ट ऑफ द एनिमल, यानी जानवरों चुपाओं की तरह हैं वो लोग जो डेफ एंड डम्ब हों, कि जो कुरान हकीम की आयत पे गौर नहीं करते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इससे आप अंदाज़ा करें कि कुरान हकीम फ़िक्र पे और तफक्कर पे कितना ज़ोर देता है। इसी तरह जो अकल का लफ्ज़ है, अकल का लफ्ज़ भी कुरान हकीम में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ऐसी ठहर जाना किसी चीज़ का। अकाल उस रस्सी को कहते हैं जिससे किसी ऊँट की टांग बांध दी जाए ताकि वो हिल ना सके, और अकीला उस खातून को कहते हैं जो बड़ी पायस हो, घर पे हो और तफक्कर की आदत हो, उसको अकीला बोला जाता है। और इसी बुनियाद पे, अकल की बुनियाद पे जो हीरे जवाहरात होते हैं समुद्र से निकलते हैं, उनको भी उनके लिए भी अकल का ही मादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है ठहराव के साथ। नशो नमा है असल से गालिब फ्रू को खामोशी से ही निकले हैं जो बात चाहिए, कि जो तदब्बर की और फ़िक्र की बात होती है वो ठहराव के साथ आती है, वो मैच्योरिटी के साथ आती है। कि कुरान हकीम कहता है कि हमने जिन और इंसान पैदा किए, अल्लाह ताला कहते हैं, और उनको कलूब दिए कि ला यफ़क़हूना बिहा,
اس پہ کیوں غور نہیں کرتے, اس کا انالیسس کیوں نہیں کرتے. وَلَهُمْ آجُنٌ, ان کے لیے آنکھیں ہیں, لا یبصرون بہا, وہ اس کے ساتھ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذانٌ, ان کے کان ہیں, لا یسمعون بہا, اور وہ اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے. اب دیکھو اس سے زیادہ تدبر, فکر کی دعوت کیا ہو سکتی ہے جو قرآن حکیم زور دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن حکیم میں تدبر اور فہم میں جانے کی بجائے ہم لوگ کبھی بھی قرآن حکیم کی آیات کو تدبر اور فہم کے ساتھ نہ سمجھتے ہیں, نہ اس پہ پونڈرنگ اور ریفلیکشن کا عمل لاتے ہیں, اور نہ اپنی زندگی کے ساتھ ان کو ریلیٹ کرتے ہیں. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف پڑھنا ہی کافی ہے. پڑھنا پہلی سیڑھی ہے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کی, فہم کی اگلی سیڑھیاں ہیں. آپ نے مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو آپ کے چھلانگ مار کے چڑھیں گے, پہلی سیڑھی پہ جائیں گے, پھر دوسری پہ, پھر تیسری پہ, پھر چوتھی. لائکلی یو ول گو ٹو دا روف آف دا ہاؤس. تو جو مائنڈفلنس آف برین ہے, جہاں پہ ہم تصورات کو بناتے ہیں, وہ کیسے اس سب کے اندر کام کرتے ہیں؟ سگمنڈ فرائڈ کی جو تھیوری ہے جس میں ایڈ کا کانسیپٹ ہے, ایگو کا کانسیپٹ ہے, اور سپر ایگو کا کانسیپٹ ہے. کیا منصور حلاج کا انا الحق کہنا تصور خودی کی ہی ایک اور کڑی تھا؟ آئی ایم دا ٹروتھ, اس کا رائٹ ٹرانسلیشن آئی ایم دا ٹروتھ. سامعین و ناظرین, علم جاننے کا نام نہیں ہے, علم تو بننے کا نام ہے. اقبال دل کی طرف سے علم کو جواب دیتے ہیں کہ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے, تو خدا جو خدا نما ہوں میں, علم کی انتہا ہے بے تابی, اس مرض کی مگر دوا ہوں میں اچھا ہوں اور میں بری ہے. نکتہ کی اگلی گفتگو میں ہم موضوع بنائیں گے انسانی میں, انسانی انا کو. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. فالو کریں ہمیں فیس بک پہ www.facebook.com/ptvnukta. اللہ حافظ.